Hi everybody, today we're here for Ek Villain Returns review. This movie is a villain because it came into my life and I didn't want it in any capacity. John Abraham, Arjun Kapoor, Disha Patni, and Tara Sutaria star in this film. It's a sequel to Ek Villain and is also directed by Mohit Suri, and he's written this script alongside Asim Arora. So Odee, we have this special request from Bharat Patel. बार उन्होंने हमें comments भेजे हैं, requests भेजी हैं कि ये film देखो, ये film देखो, ये blockbuster है, Disha is a hot blockbuster, जो भी है. तो हमने ये जिम्मा उठाया, हम दोनों ने ये मूवी देखी, and मेरा question ये है, क्या ये ब्लॉकबस्टर थी? कीर्ति, एक तो आई शुड थैंक यू एंड आई शुड थैंक माई सेल्फ ऑल्सो कि हम अपने ऑडियंस की बात सुनते हैं. भरत पटेल, दिस एंटायर रिव्यू इज बेसिकली फॉर यू ओनली. I never wanted a villain in my life and neither I wanted this movie back in my life. इसका part 2 आता, but it's not worth it. Trust me, it's not worth it. But is it worth reviewing? I feel like yes. Isn't this weird, Odee? ना मुझे ये मूवी अच्छी लगी है, ना तुझे ये मूवी अच्छी लगी है, लेकिन there's stuff to talk about right off the bat. Misogyny. This movie is a classic textbook on what misogyny is, what leads into misogynistic behavior from the man and from the woman's side. Is movie में पूरी thesis बंदा लिख सकता है, you know, on how our society functions. शुरुआत ही इसकी इतनी बेकार थी, मतलब misogynistic थी, कि there's this guy, he is in love with this girl और उसके बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, जो मर्जी उसको कह दो. He can't take it. He goes, मरना पसंद है मुझे, हारना नहीं. What the hell? इतना बड़ा ईगो है, इतना like pride है इस बंदे में कि I'd rather die than lose you because the girl is a game. You know, he has to win the game and he has to win the girl क्योंकि girl has no free will. She's just a trophy जो हासिल करनी है ना? अर्जुन कपूर ने ये डायलॉग कम से कम 10 बार बोला होगा कि मुझे मरना पसंद है, हारना नहीं. There's a lot of men, maybe even women, but let's just focus on the men because this is what the movie is about. There's a lot of men जो rejection सहन नहीं कर सकते, उनको पसंद नहीं ना सुनना, and उनको लगता है शायद कि ना में भी हाँ है. So यहाँ वो सीधे सीधे कह रही है it's over. No, multiple women with multiple relationships are shown. No. But none of those guys can take it. Forget Arjun for a second. Even जब John आता है, उसका character introduce होता है, people are like, he did something that we couldn't do. वो हमारे लिए मसीहा है. Are you serious? A guy is going around killing women just because those women don't want to be with you and he's the messiah? You gotta be kidding me. This movie can be classic subject for the reviewing it. कि कैसे एक मूवी के अंदर आपको इतनी मिसोजिनी दिखाई जा सकती है और उसको कैसे सेक्सुअली आप परोस सकते हैं. शुरू में हमें दिखाया जाता है जो गौतम का कैरेक्टर है, he is a rich guy, he doesn't care about the money, he just gate crashes a wedding of an ex और वहां जाके वो ये इस तरह का कांड करता है. उसको हीरोइक दिखाने की क्या जरूरत पड़ी है? माय प्रॉब्लम वाज कि हाउ कैन दिस बी हीरोइक, कि जिस तरह से वो स्लोमो में जा रहा है, पीछे म्यूजिक बज रहा है और वो वहां पे आके ऐसा तमाशा क्रिएट कर रहे हैं. एंड इवन द गर्ल शी वाज लाइक ओके आई लव यू एंड ही इज लाइक ओके तुझे आई लव यू बोल, तूने मुझे आई लव यू बोला, नो आई लीव यू. It was pretty disgusting to me, okay, because एक तो वो आता है, सबको धैर वो मार रहा है. The groom or the prospective groom was just standing there watching क्या हो रहा है. The girl, she's scared कि what are you doing? She sees him beat up all these people. अचानक से प्यार जागता है and she says yeah I love you. तो वो कहता है to the groom, see she loves me but you can marry her because I don't like you. So like I said, game, लड़की एक game है और वो game कैसे खेलनी है वो लड़का बताएगा, and that's Arjun. This is a rich guy, like a rich brat basically. Anything he wants in life he has, बाप का दिया हुआ, and he feels like he can do anything. First scene जहाँ inspector detective है वो villain के ऊपर बात कर रहा है. He says villain की story हमको पता नहीं चलती क्योंकि हम hero की story पे focus करते हैं, लेकिन villain की story में वो खुद hero होता है. Then he gave reference to Ravan and Duryodhan. वो दोनों villains थे, लेकिन क्यों थे? What led them there? तो मुझे लगा okay, चलो अब villains पे focus होगा कि what leads to that.
अर्जुन का मुझे अभी तक पता नहीं चला why he's so entitled, why he has a problem with his dad, why he has an attitude with anyone, why he feels कि मैं एक दूसरी लड़की का career खराब कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इस लड़की को पटाना है अभी. Why he can go to that girl's father and say, oh yeah, ये तेरी दूसरी family है, ये लड़की है तेरी, ruin his career. Who gave him this right? मुझे आज तक समझ नहीं आया. जहां तक जॉन का है, at least we get some inclination कि what made him a killer. Not that is justified, but at least कुछ तो backstory मिली. अर्जुन का मुझे कुछ नहीं पता. अभी तक तो मुझे यही समझ नहीं आया. How in the hell did they fall in love, Arjun and Tara? और मोहित सूरी की जो यूनिवर्स है एक विलन की, मुझे पार्ट 1 के अंदर भी मिसोजिनी नजर आई थी. हाउ देयर इज दिस गाय जो क्या नाम है अपनी बीवी से तंग है तो बीवी बुरी है. Yeah. So he's on a streak of killing women. But this time, not only it is deeply misogynistic, it is cringy as well. Yes. And it's not creepy even. पहले पार्ट में ये था कि it was creepy. रितेश देशमुख ने वो करेक्टर इतना brilliantly परफॉर्म किया था. लेकिन यहाँ पे आपने विलन क्यों दिखाया अर्जुन कपूर को? क्योंकि उसका दिल टूटा है. दिल टूटा है क्योंकि उसकी एक्स की शादी हो रही है. So how is it justified? And मुझे लगता है 2 वर्ड्स इतने बास्टर्डाइज किए गए हैं. एक तो विलन, हर एवरी सेकंड विलन. अरे ओके फाइन, आई नो, आई एम वाचिंग एक विलन. मैं विलन हूँ, मैं विलन हूँ, तू विलन है. Like shut up, we get it. मेरी कहानी का तू विलन, मेरी कहानी की मैं विलन. एंड क्या नाम है दूसरा वर्ड इज ये एक तरफा प्यार. I have seen एक तरफा प्यार की ताकत so much brilliantly in the Indian cinema. इस मूवी के अंदर this term has been bastardized और विलन के साथ उसको जोड़ा गया. It's literally sympathizing with the guys that have been rejected and feel like they need revenge. ये जो killings होती हैं, acid attacks होते हैं, rape होते हैं, is justifying that कि अच्छा justifying that. Yeah, कि अच्छा तेरा दिल टूटा है ना तो you have the opportunity to do this. अगर तू नहीं कर पाया, you get and hope कि someone else does it for you. John Abraham. सारा है, मुझे लगा कि okay, Arjun is manipulative. He is doing these things to win her. लेकिन she is just as bad. She knowingly also freaks out that other singer, her competition. कि okay, now मेरा time आएगा, मेरा star बढ़ेगा, So I'm like, अच्छा, maybe they two deserve each other क्योंकि दोनों ही same हैं. And can I just say एक second के लिए मुझे अर्जुन का look अच्छा लगा. The tattooed sleeve, the hair, the black shades, the black, I love black. पर वहीं तक ठीक था वो. I was rooting for Arjun so bad. हालांकि जब मैंने ट्रेलर देखा था, मैंने कहा था कि John is going to be the best one in the movie for me. Because even though John is playing this psychotic killer, his body language matches at least. उसको देख के डर लगता है, वो lean mean killing machine है. वो जब गुस्सा होता है उसकी आंखों में दिखता है. That hurt he had when he saw his lover like on the bed with somebody, you felt that. Arjun को देख के, he was trying to be mean and menacing. He was trying to be emotional. लेकिन मुझे कुछ feel ही नहीं हुआ, which is bad because I thought that he was a pretty solid actor. I don't know what happened to him here. Kirti, the thing is कि ये जो अर्जुन का कैरेक्टर है वो सिर्फ उसकी लुक तक सीमित रहा है. Yes, तारा सुतारिया आरवी जो शुरू में मरती है जिसका मर्डर होता है. माय गॉड, सच अ बैड कैरेक्टर. मुझे लगता है इनको लगता है कि जी अगर हमने आज की लड़के लड़कियां दिखानी है तो या तो उनका दिल नहीं टूटना चाहिए, टूटेगा तो हम आपको कत्ल करेंगे. दूसरा कि इट इज जस्टिफाइड के यू पुल योर कंटेम्पररी और योर कंपैटिटर डाउन विद योर डर्टी ट्रिक्स. आप स्माइली मास्क लगा के उसको डरा रहे हैं. देयर वाज दिस सीन जहां पे अर्जुन जो है वो जाके सो कॉल्ड फेक करता है एक रेप अटेम्प्ट की उस लड़की के कमरे में जाके, एंड यू आर शोइंग इट एज हीरोइक. लाइक सीरियसली कि वो डर जाए. Such a bad script, such a bad characterization. और मेरा प्रॉब्लम ही लाइक आई सेड कि उसको हीरोइक जब दिखाते हैं ना ये स्लोमो में चलना और क्या नाम है पीछे म्यूजिक का बजना और वो लड़कियों से फैंटेसाइज हो रही है. How insane is it कि जब वो अपने कॉन्सर्ट्स के लिए जाती है, then they have people with the masks on, they have the balloons with the smiley faces, है ना? In which world is it okay to mentally torture someone, mentally make them so distraught कि वो अपना गा भी नहीं सकते, अपना प्रोफेशन भी नहीं ढंग से निभा सकते. It's not okay on any level to torture someone like that. और इस मूवी में दिखा रहे हैं कि it's okay क्योंकि your end goal is to help this girl and that girl is happy seeing all of this.
वो देखती है कि मैन दिस गाय इज डूइंग दिस फॉर मी, चलो आई नीड टू बी विद हिम नाउ। वो नाच रही है उसके साथ, गाने गा रही है उसके साथ। कैन आई जस्ट से शी माइट बी अ सिंगर, लाइक एवरी सॉन्ग सक्ड। द सॉन्ग्स वर सो एवरी हॉरिबल। सॉन्ग सक्ड, Yes. यू नो कीर्ति, ये इतना क्रिंजी था दिस एंटायर पोर्शन, Yeah. क्योंकि उसके अंदर एक तो वो लड़की वैसी बैड सिंगर है, हबे चल मिसोनेटी, शी वाज लाइक दैट। मैं कहता हूँ चलो पीपल डू सिली थिंग्स, Yeah. पीपल टेंड टू हैव दीज टेंडेंसीज जहां पे वो नेगेटिव थॉट्स लेके आ सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट भी करते हैं, Yeah. लेकिन उसको हीरोइक दिखाना, ठीक है, Yeah. लड़की भी, अरे तू विलन, नहीं मैं विलन तू पंटर, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट वाज दैट जो तारा हाँ, ने उसको बोला, शी सेड मैं विलन तू पंटर। तो आई वाज लाइक या तो आपके पास राइटिंग ही नहीं थी उस पोर्शन को लिखने के लिए, और आपने ये दिखाना है कि बैड पीपल डूइंग बैड yeah, थिंग्स, गेटिंग सेक्सी अबाउट इट, yeah. यू नो गोइंग टू बेड एंड स्लीपिंग अराउंड, एंड देन व्हाट, और वो विलन बन जाते हैं। जहां तक राइटिंग की बात है ना, आई थिंक ये तारा ने ये लाइन कही थी अर्जुन को, धमकी देने आए हो ना, वो अपनी महंगी जेब में रख के चले जाओ, और समथिंग लाइक दैट। या Like I was like, what in the hell is she talking about? ये कैसे cringy dialogues हैं? And speaking of cringy, is not just ये तारा, ये जो दिशा का रसिका character है, every time John does not live up to her expectations of how a man should be, which is basically don't be shant, don't be Shushil, don't be calm, because those people don't make it anywhere. It's a dog eat dog world. कोई तुझे मार दे उससे पहले उससे उड़ा दे. That's how she is. So whenever he can live up to that, she calls him a fool. Like, you idiot, you fool. इतना उसको पिन करना है, इतना पिन करना है, और वो बंदा बार बार कह रहा है, क्योंकि I guess he's just so smitten all of a sudden कि मुझे रेटिंग देना, मुझे रेटिंग देना, हर एक मर्डर के बाद उसको रेटिंग चाहिए, and she's just berating him every time जब तक or gruesome murders na ho, he's not going to get that 5-star rating. Or ek to these people are getting a weird like turn on from being like misogynistic and aggressive. Sabse weird to yahi tha कि when John has his first killing, Disha is turned on. She is having like her desire is out of the roof, and they're having sex in like a butchery. Okay, there's dead carcasses hanging from the hooks, and I'm like, this is absolutely disgusting. This shows like mentally where this lady is, that this can be a turn on for her. And also, can I just say, turn on maybe wo hogi mujhe dekh ke kuch nahi hua, because John is a beautiful man. Wo wahan apni shirt utar raha hai, she's a beautiful woman. How are they so sexy on their own, but when they come together kuch nahi hai, like koi chemistry नो nahi hai. फायर, नो Both of these फायर। couples had no chemistry. Why all this sex all of a sudden? दिशा पाटनी जो है, there was this line when she is going in the Uber with John, तो उसको कहती है तूने किया है सेक्स, when Yeah. some couple is sitting at the rear, and I felt the pain in John's eyes. जो भी प्ले आपने बनाया कि शी इज दिस वुमन, वो ज़ारा में काम करती है, बट शी इज सो चालू कि वो लड़का आएगा तो उसको पता है मैंने खर्चा ऐसे करवाना है, Yeah. मेरा बोनस क्रिएट करेगा। Yeah. एंड जॉन का जो कैरेक्टर है उसकी बैक स्टोरी क्या है कि वो गाड़ी चलाता है और वो जू कीपर है, लाइक Yeah. सीरियसली। Yeah. तो आपके तो मतलब जो स्टोरी वाले मेन 4 कैरेक्टर्स हैं उनका तो आपका बैकग्राउंड ही इतना पुअर है। क्या जो मैं सिंगर biased हूँ ओडी कि मुझे फिर भी जॉन का कैरेक्टर सही लग रहा था इन टर्म्स ऑफ थोड़ी सी तो बैक स्टोरी मिली उसको कि उसके पास पैसे नहीं है, ही इज लाइक अ लोनर टाइप, थोड़ा सा सहमा हुआ, ही इज नॉट अ प्लेयर जैसे वो चाहती है, एंड देन शी इज एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। जहां तक ये जू की बात है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ अ केज्ड टाइगर। I feel like that was a great metaphor for him क्योंकि वो भी caged था. He wasn't, living the life that she wanted or he thought that he should live to get the girl. So what happens? She opens that cage and the tiger is unleashed. John Abraham is awakened and now he can go on a killing spree because that's what his lady love wants. जस्ट प्लीज क्लियर मी कि एक तो जितना सीजीआई वो चीता था उतना ही सीजीआई इसका इमोशन था, मतलब द मैटर फॉर यू ड्रू आई लव इट, बट माय प्रॉब्लम इज के वो भी नकली चीता था और यहाँ पे जो उसकी स्टोरी दिखाई गई है was it that strong? No. जो पहली फिल्म थी उसके अंदर वाई रितेश देशमुख कैरेक्टर वो क्यों चल रहा, क्योंकि ही इज अ नॉर्मल लुकिंग गाय Yep. जिसकी बॉडी नहीं है,
Yep. जितना स्ट्रॉन्ग दिखता नहीं है, Yep. बट ही साइलेंटली बिकम्स दिस किलिंग मशीन। यहाँ पे जॉन विजिबली ही इज दिस सत्य में विजेते का उठ के सेट से आ गया है, ये Yes. बॉडी है, ही इज अ हल्क लुकिंग गाय एंड ही इज टू डरपोक। मतलब आई नेवर गेट इट कि जब भी उसके सीन्स थे ना, जब उसको कहती है कि क्या नाम है, या तो मरो या मार दो, Yeah. तो मारो मारो मारो, और वो जाके उस बाइक वाले को हिट करती है एंड ही इज जस्ट सिटिंग लाइक दिस He's like, डरपोक बच्चा, what? सहमा बच्चा। What the मतलब hell? या तो आपके बचपन, हाँ, या आपके बचपन की कोई बैक स्टोरी दिखाई गई हो, Yes. वो नहीं है, ठीक है, Exactly. कुछ भी नहीं था। Yeah. और ऐसा क्या प्यार है जहाँ पे वो लड़की उसको क्लियरली बोल रही है कि माई प्रायोरिटीज आर सॉर्टेड, आई वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ बिकॉज मेरे लिए पैसा सब कुछ है। She wanted this ring, उसके पास पैसे नहीं थे, वर्क करके उसने वो रिंग खरीदी उसके लिए। He's imagining getting married to her, है ना? These गुंडे see him, right? These गुंडे that have no body शादी, लेकिन 4-5 आ जाते हैं, उसको गाड़ी में बिठाते हैं and he's looking scared and घबराया हुआ। I don't care कि ये कितना शांत और सुशील लड़का होगा इस मूवी में, there's no way कि John can look scared with these guys because John is It's like not a sellable, man. yeah. He finds out that the girl he buys his ring for is having sex with another guy. He's heartbroken. मुझे लगा कि जब दिशा आएगी और उसने वो डायलॉग शुरू किया ना कि I'm sorry, ये वो मेरे एडवांटेज ले रहा है, ये वो, and then she goes, that's what you wanted to hear, right? But haha, I wanted this because bonus और ये वो and मैंने तेरा यूज किया है वो लोनावला ट्रिप जो थी. And you could see John, he's obviously devastated. I was like, damn, this Disha's character is next level in terms of manipulation, in terms of greed, in terms of using people. यहीं पे ना मुझे प्रॉब्लम नजर आता है। मुझे लगता है मोहित सूरी के पास 2 मूवीज के स्क्रिप्ट्स थे। एक तो जो आरवी और गौतम की है, वो थोड़ी आशिकी वाला स्टार इज Yes. बॉर्न से थोड़ी बहुत मिलती कि वो Yes. सिंगर बनाएगा और फिर वो उसका दिल तोड़ेगा एंड ऑल दैट। और यहाँ पे देयर इज अनदर स्टोरी जहाँ पे दिस वुमन अगेन हु इज मैनिपुलेटिंग, हु इज Yeah. जस्ट यूजिंग दिस गाय कि चलो मुझे घुमाए फिराए एंड ऑल दैट। उन दोनों स्टोरीज को जब आप कंबाइन करते हो तो उसको इतना सीमलेस होना चाहिए कि वो और न लगे। It जब was हम really बैक weird. एंड फोर्थ की स्टोरी दिखाते हैं, क्योंकि इस मूवी हाँ. में उसको बहुत दिखाया गया है, दे शुड लर्न इट फ्रॉम लव आजकल। जिस खूबसूरती से लव आजकल के अंदर वो बैक फोर्थ चल रहा था ना, Yeah. दीपिक और सैफ की स्टोरी थी और Yeah. दूसरी हरलीन और दूसरे सैफ की जो स्टोरी थी, Yeah. दैट वाज क्यूट एंड दैट वाज अंडरस्टैंडेबल। यहाँ पे इट वाज सो वियर्ड कि लगता 2 फिल्में चल रही हैं Yeah, अलग अलग। like ये जो तू बात कर रहा है past and present का जो switch हो रहा था, I feel also ये जो मूवी थी साथिया with विवेक ओबेरॉय and रानी मुखर्जी, उसमें beautifully done था। हमें पता ब्यूटीफुली चल रहा था कि कहाँ ये स्टोरी जा रही है और क्या-क्या हुआ है past में। यहाँ they're using this past and present as a vehicle to move the story forward, लेकिन जब past में जाते थे कोई connection तो बना नहीं इन characters के बना ही साथ। नहीं। तो present में क्या-क्या हो रहा है, why in the hell do I care? I thought कि ये जो confrontation scene हुई थी in the train, can we just talk about how crazy this scene was? Okay, between Arjun and John. एक तो they're beating each other up, लेकिन अर्जुन ने ऐसा धक्का मारा उसको, वो जो ट्रेन की रॉड होती है that you think is metal, वो ऐसे बेंड होती है ना, एक नहीं 2-3 होती हैं कि ये मेटल था कि aluminum. And then he grabs him from the door, है ना, and John is hanging, right? He's hanging at the door of the train. Train जा रही है. He somehow gets himself off of there. He lands perfectly on the truck. Then the truck moves. Then he gets off the truck. And that happens to be right where his car is. This kind of haphazard storytelling used to happen a long time ago. अब तो हमें बैठे बैठे लग रहा है कि अच्छा ये सब उसको पता था कि कहाँ ट्रक आना है, कहाँ रुकेगा, कहाँ मेरी गाड़ी है. This was nonsense. वो फाइट सीक्वेंस आपने लेके आना है, हवा में उड़ पड़े हैं। मतलब चलते चलते ना लड़ते लड़ते हवा में गए एंड देन थैंक यू क्लियरली मेंशन कि जॉन जैसे लैंड कर रहा है, इट्स टू आर्टिफिशियल फॉर I मी। mean, I know और he's सीमलेसली जाके ना, amazing. I know he's नहीं, he athletic. looks लेकिन amazing, इतना he looks amazing, but that's it only। जॉन को छोड़ो, ये जो हवा में उड़ने की बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ, अर्जुन has money, he's loaded, लेकिन क्या वो बैटमैन है? He like jumps out of the window of that tall skyscraper, है ना? He lands, कोई like हड्डी like नहीं टूटी, कोई इंजरी नहीं हुई, एक कट इतना सा लगा है, and that's it. वो बाइक में चढ़ता है और चले जाता है. I was like, damn, Arjun is a superhero or what? नहीं, इवन इस सुपर हीरोशिप वाज शोन कि जब वो उस कॉप के घर से निकल के जू की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में पुलिस रोकती है,
तो वो बाइक को जैसे उड़ाता है और सीधा जाके आगे पहुंच जाता है, टक 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 करके। आई वाज लाइक डैम, मतलब धूम I 3 भी thought we डाल were दी है। watching a Rohit Shetty film क्योंकि या windshield टूट या रही हैं, गाड़ियां are flying all over the place. I was like, ये Rohit Shetty कहाँ से आ गया? Let's talk about two scenes that we saw in the trailer that we were really like wondering कि ये क्या है, okay? एक्साइटेड फॉर। हाँ, एक तो ये श्रद्धा का जो रेफरेंस आया था, you know, with the window and making the smiley and all that. In एक villain, that was such a cute scene because वहाँ सिड और श्रद्धा की स्टोरी बन चुकी थी. हमें पता था how these characters are and where they're going. यहाँ पे वो अभी अभी भैरव को मिली है एंड वहां जाके वो स्माइली बना रही है. कोई कनेक्ट नहीं लग रहा मुझे तुम दोनों में. दिस स्माइली shouldn't be used here. That was श्रद्धा एंड सिद्धार्थ सीन. एक तो वहां डिसअपॉइंटमेंट थी. एक जो ट्रेलर में बेस्ट सीन लग रहा था ना was when दिशा एंड तारा आमने सामने आती है बेड पे. जब दिशा ऐसे करती है हमें तब लगा था मे बी तारा एंड दिशा आर पार्टनर्स एंड वो ये सब करा रहे हैं like the girls are having revenge. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. That even scene was looking really weird at that point. जहां हमें लग रहा था ना कि ये ऐसे ऐसे मूवी मैनूवर करेगी. In the first one the guy was the villain. यहाँ girl को villain बनाएंगे. पर कुछ नहीं हुआ. I was fooled by this femme fatale moment Yes. in the trailer. अगर ये मूवी में वो कर देते कि आरवी और रसिका मिले हुए हैं, जिसकी वजह से वो मिसोजिनी जो है वो थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाती, Yes. इन अ सेंस कि यू नो बैलेंस आउट हो जाती कि हाँ लड़के विलेन क्यों बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा था ही कुछ नहीं। जब वो सीन आने लगता है, दिशा पाटनी जो है शी बिकम्स दिस सेक्स डीवा। वो निक्कर पहन के और वो यू नो क्रॉप टॉप सी जो उसने पहनी हुई है, बेड पे जाके सेल्फ मेकआउट कर रही है और फिर एकदम सडनली नीचे गिरती है Yeah. और जॉन आके उसको मार देता है। ये दिशा कौन से ट्रिप के ऊपर थी कि He gets a मर्डर होने kick लगी। out of killing and being violent and Yeah. watching violence. एक पॉइंट आया इस स्टोरी में जब हमें पता चलता है कि दिशा is a delusion. वो वहां है ही नहीं. ये जो murders हो रहे हैं जॉन अकेले कर रहा है. He's visualizing her. John has already killed her and put her in the ice box. I was shocked there. मुझे नहीं पता चला कि ये delusion है. जो वो जेल वाला सीन था and John and Disha are hugging each other and Disha looks up and gives Arjun a look. मुझे लगा ले ये दोनों मिले हुए हैं या अब ये इसके लाइन मारेगी. मुझे ये लग रहा था. रसिका जो कैरेक्टर था, कभी वो कुर्तियों में आ रही है, कभी वो यू नो दीज डिसेंट स्कर्ट्स में आ रही है और टुवर्ड्स द एंड शी सडनली बिकम्स दिस सेक्स थिंग कि जहां पे मुझे लगता है जॉन वो इतना साइकोटिक है कि whenever he wants to get an action तो he has to kill somebody क्योंकि दिशा को फिर गर्मी चढ़ जाएगी। I just thought Yeah. कि ये बेचारा मार ही जा रहा है and वो लड़की उसको फिर भी भाव नहीं दे रही. एक सीन पहले वो कहती ये बच्चा ना तेज है, Adopt कर clever लेंगे। है, हम अडॉप्ट कर लेते हैं. Cut to you are an idiot. You fell for this. I was like what? जब बैक स्टोरी दिखाते हैं, चलो डिल्यूजन दिखा दिया, अब मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे? जब बैक स्टोरी दिखा रहे हड्डियां तोड़ देता है वो बेचारी की जफ्फियां मार के। जब उसे कहती छोड़ मुझे उसने हड्डियां उसकी तोड़ दी in a hug. Why did he do that? Was he scared that she was gonna leave him? Like what was? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्यों कर रहा समझ है. ही नहीं आया। टूटा हुआ आशिक है। अनदर लेवल ऑफ यू नो बफूनरी कि आप लोगों को दिखाएं कि जी आशिक ऐसे होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं आशिक। No. ऐसे क्रिमिनल होते हैं। दे वर Yeah. क्रिमिनल्स। हीरोइक नहीं है, ये क्या नाम है, लवर्स नहीं है, ये टूटे हुए दिल नहीं है। दे आर जस्ट बैड क्रिमिनल्स। देयर वाज दिस एंटायर पोर्शन जहां पे यू नो barrage of boys show up on the police station कि जी बुरा लगा लेकिन दिल से हमें खुशी हुई. हाँ उसने मर्डर किया लेकिन मुझे उस वक्त ठंडक मिली. What nonsense were they showing? What nonsense is that? This movie was such torture to sit through कि जहां वो मैं टाइगर एंड केज की बात कर रही थी ना कि John is out of the cage, he's free and he's become a tiger. मुझे लगा कि जब टाइगर ने एंड में उसको अटैक किया ना अच्छा वो मर गया मेरे तभी मैंने मूवी बंद कर दी. I was like चलो मरा तो चलो मूवी इज डन मैंने और नहीं देखना. I had no idea कि that wasn't the ending. एंड में जॉन अब्राहम जो है वो हॉस्पिटलाइज है. ठीक है उसकी आंख पे चोट आई हुई उसकी आंख आ गया चीता और बाद में रितेश देशमुख आते हैं कहते हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे अगली दफा. एंड आई वाज लाइक रियली दे हैव टू मेक एक विलन पार्ट 3 times 3 आएगा and वहां जॉन एंड रितेश इकट्ठे होंगे. You know, Kirti, this movie could have been so much better. जहाँ पे म्यूजिक को लेके तुमने बात की कि म्यूजिक was so bad. सिर्फ this is one song वो कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया. I think that song is really beautiful. और जब वो मूवी में आया था ना गाना तो I thought कि अगर मोहित सूरी जब इसको एडिट कर रहे थे या वो बना रहे थे उनको एहसास होना चाहिए था कि
जो तारा की और उसकी स्टोरी है गौतम की, उसी के ऊपर अगर वो खेल जाते, जॉन का कैरेक्टर ही ना होता, जो एक मजीद टूटा हुआ आशिक है, दिशा पाटनी को भूत बनने की जरूरत कोई नहीं थी। यहाँ वो पे भूत नहीं थी जब यार, वो delusion हाँ थी। वही ना, मतलब भूत फॉर अस शी इज अ भूत रहो। तो वहां पे अगर जो आरवी और गौतम है, उनके अंदर जो मिसहैप हुआ, जब वो उसे बदला ले लेता है और वापस जाके वो इसको दिस सीन जहाँ पे वो बोतल क्रैशिंग होती है, इसको हॉस्पिटल लेके जाती है। आई थॉट एक विलन को यहीं तक वो रखते, इसी स्टोरी के ऊपर खेलते। So basically, कि I favored Rasika and Bhairav की story, and you favored Gautam and Arvi की story. जहाँ ये Bhairav और Rasika थे ना, I thought कि चलो दोनों ही खिसकियों हैं, at least कुछ तो मजा मसाला मिल रहा है यहाँ। गौतम का मुझे अभी तक समझ नहीं आया, like what he was doing in this whole movie. बिकॉज कीर्ति Arvi was useless. But Kirti, I think why you like Disha and John's storyline, because they both are very sexy. It's a fact. The best part about them No, is I they am both are biased for sexy. John any day, okay? But I'm Yeah. saying this whole movie was irrelevant. लेकिन John फिर भी John है और उसको देख के थोड़ा अच्छा भी लग रहा था. He fit his character. He looked like a believable killer. मुझे लगता है कि हमने भी काफी बकवास कर ली है ये बकवास मूवी देख के. So I am still like in shock कि हमने ये movie देखी है. Guys, if you like this review, please comment and let us know. Do you agree with this whole take we had on misogyny? Which couple did you resonate with more? Which grabbed your eyeballs more? Also, follow us on Instagram. I am Pari602. Odee is Odees_Insta18. There you have it, guys. Comment and like and share and subscribe and let us know what else you want to see from us, and we'll see you next time. Odee, they even ruined that song, man. I love that song. You know, Galiyan, Galiyan, Teri Galiyan. गलियां। Hi, hi. But What did they कीर्ति, जब do? ये गलियां गाना आया, जॉन कपड़े फाड़ है अपने, दिशा के फाड़ है, अब ऐसे ये चल क्या रहा है इतना वो सब तो ठीक है. I couldn't get over the carcasses. That butchery was so horrible. Oh, जितना the butchery गाना of the song was horrible. yeah.